Grateful for another day. No matter what the world brings, I choose to smile anyway. Every challenge, every win, it's a part of where I've been. Jagannath. I'm thankful for today. In every single way, I see the good in everything. The little moments make me sing. With open heart I face the day. Grateful for all that comes my way. I'm thankful for today, come what may. I'm living in the light, I'm here to stay. Every moment is a gift I see, the beauty in what life gives me. I'm thankful for today, I rise and shine. With gratitude this life is mine. Gratitude this life is mine. I don't need perfection to feel this peace inside. In every twist and turn, there's love I won't deny. The rain and sun, they both belong. They help me grow so strong. I'm thankful for today, in each and every way. I see the good in everything. The little moments make me sing. With open heart I face the day. Grateful for all that comes my way. I'm thankful for today, come what may. I'm living in the light, I'm here to stay. Every moment is a gift I see, the beauty in what life gives me. I'm thankful for today, I rise and shine. With gratitude this life is mine. With gratitude this life is mine. Through every trial, every tear, I choose to hold my blessings near. No matter what tomorrow brings, today I find the joy it brings. I'm thankful for today, come what may. I'm living in the light, I'm here to stay. Every moment is a gift I see, the beauty in what life gives me. I'm thankful for today, I rise and shine. With gratitude this life is mine. Every breath I feel the grace. I'm thankful for today, I embrace this place. हाँ जी, हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? Happy morning. happy morning, भैया. Happy morning. क्या समझे इस गाने से? Full Happy and gratitude. morning. Happy morning. Thankful and gratitude एब्सोल्युटली, लाइफ for इज सो everything. ब्यूटीफुल. जिंदगी कितनी खूबसूरत है. अरे वाह, आज तो छोटा सा बेबी भी आया है, मानसी सन. ग्रेट. जो लोग बंद करके बैठे हैं, चालू कर लो कैमरा. एक बार तो शक्ल दिखा दो एक दूसरे को. कैसे हो मनीषा जी आप? बहुत ही उम्दा भैया. Looking स्वस्थ, forward. मस्त, मस्त. जबरदस्त. जबरदस्त. Yes. that's the energy you need. अरे ताई जी आ गया तो. अरे happy morning, Finally, ताई जी. आज इतने सालों बाद वापस से दर्शन हुए. Happy morning. Happy morning. हैप्पी मॉर्निंग ताई जी. Happy morning. Happy morning, Purnima ji. Happy morning. हैप्पी Happy morning, मॉर्निंग Manisha ji. अनीता. Lots of blessings. Thank you so much for Good having me. morning, Mosi. Thank you, Great, thank great, great to see everyone back in action. क्या चल रहा है? कोई शेयरिंग, कोई अच्छी चीज हुई है किसी के साथ, कोई शेयर करना चाहता है बिफोर वी स्टार्ट द सेशन? कोई तो तगड़ी शेयरिंग लाओ. जैन सर कोई शेर ही सुना दो यार, बढ़िया. कोई शेरो शायरी आज. शेयरिंग तो मैं कर सकती हूँ, शेर शायरी का पता नहीं. तो ताई बताओ यार, कोई अच्छी चीज बताओ. एवरीथिंग इन अबंडेंस लाइफ में, मतलब कितने ब्रेकडाउन्स आए पर सब हील करके बहुत अच्छी लाइफ चल रही है. सब कुछ अबंडेंस में है, जो चाह रही हो रही हो. मल्टीपल ट्रेवल चल रहे हैं बहुत ज्यादा लाइफ में. एंजॉइंग एवरीथिंग विद डिवाइन एनर्जी. और क्या चाहिए ताई? बस जीवन में और है क्या? ट्रैवल कर रहे हो,
सीख रहे हो, रोज ही आपकी सीखनी चलती रहती है, लर्निंग चलती रहती है, कुछ ना कुछ एवरी डे मॉर्निंग सेशन जबरदस्त होते हैं हमारे डिवाइन एनर्जी के, एवरी डे। तभी आपकी एनर्जी अलग हो रखी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एनीवन एल्स? थैंक यू। टीना जी, कुछ शेयर कर रही हो आज आप? हाँ जी, सब मैं तो अच्छा जब चल से रहा ये नया साल चढ़ा है 2026, तब से तो मेरी मजे ही मजे हैं। कभी कहाँ घूमने जा रही, कभी कहाँ। और बच्चे मेरे इतने अच्छे हैं, मैं दिल से उनको ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि अभी मैं डॉक्टर के पास सिंगापुर में हूँ और 2 महीने बाद फिर यूएस जा रही हूँ बेटे के पास। तो मेरी तो लॉटरी लगी हुई है घूमने अरे की। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुपर सुपर, गुड टू हियर दैट, गुड टू हियर दैट। चलो ग्रेट। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा मेरे विपरीत है, मेरी पर्सनालिटी के विपरीत है, बट फिर मेरे को शिप्रा ने बोला कि नहीं सर, ये टॉपिक लो, बहुत ज़रूरत है लोगों को। तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। अब क्या है ये टॉपिक, कोई बताएगा कि क्या है इस टॉपिक में, आज क्या बात करने चाह रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, जीवन में जब भी संघर्ष आता है तो आप लोग क्या करते हो? कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जो हमारे अनुकूल नहीं होती है, हमारे विपरीत होती है, तो आप लोग कैसे डील करते हो? ऐसा तो है नहीं किसी के जीवन में, चलो शेयरिंग्स अच्छी चल रही हैं, जैसे ताई ने भी बोला संघर्ष तो आते ही हैं, ताई की लाइफ नेक्स्ट लेवल पे चल रही है, बट बाकी सब लोग, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जीवन में जब तकलीफ़ें आती हैं तो आप क्या करते हो? भैया ठीक करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज थोड़ा लेट गो भी करना सीख गए हैं पहले के मुकाबले में। पहले नहीं कर पाते थे, अभी कुछ समय से लेट गो भी करना सीख गए हैं। कोशिश करते हैं उस चीज को अच्छा कर दें। ग्रेट। परिस्थितियाँ ऐसी बनती है ना कभी कभी कि यार हम इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल में रख सकते हो, बाकी सब आप नहीं कर सकते? गुस्से को ऐसी वो कौन? TWA, thoughts, words and actions. अरे वाह, कौन बोला? सोनल बोली आज, सुपर, ग्रेट सोनल। सो अब हमारे हाथ में 3 चीज़ें हैं, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शन। कोई भी जीवन में आपत्ति आई तो हम 3 चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे है नहीं। हमारी तबीयत खराब हो गई तो हम एक्शन ले सकते हैं ना कि हाँ हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं, हम अपने आप को अच्छा बोल सकते हैं, राइट? कोई रिश्ता ख़राब हो गया है तो उस रिश्ते के लिए भी हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं और कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं कि वो रिश्ता ठीक हो। पर घनी समस्या होती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी समस्या होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती नहीं। उसके उस मैटर में आप लोग क्या करते हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म, ये आपके कंट्रोल में हैं, आपने कर लिए। अब इसके अलावा भी अगर आप वो चीज़ सही नहीं हो रही तो अब आप क्या करोगे? Acceptance and surrender. वेरी गुड सोनल जी, बढ़िया चल रहे हो, सुपर। सो आज इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं ना। ये जो आइडिया है थोड़ा सा ऐसा शाइन साउंड करेगा कि यार आप तो बोलते हो हमेशा पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, आज आप ये बोल रहे हो ये, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी है। हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस जो है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात हो रखी है। बट कुछ आइडियाज़ जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और स्पेशली रिश्तों में, और जो मेरे को एकदम से रिलैक्स कर देते, ठीक है यार, जैसे आपके साथ मैं इसको शेयर करूँगा तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन में टेंशन कम हो गई है, हमारे कंधे जो हमेशा ऐसे टाइट रहते थे वो थोड़े से हो गए हैं, पेट में सांस आने लग गई है, मसल रिलैक्स हो गए हैं, एक वो शांति वाला जो प्रतीक है ना कि हाँ अच्छी सांस आ रही है, अच्छा जीवन चल रहा है, वो वाली फीलिंग आपको आने लग जाएगी। आपके चेहरे पे यूँ स्माइल आने लग। कैसे हंसोगे आप लोग, दिखाओ, हंस के दिखाओ सब लोग। ग्रेट, दैट्स सो नाइस। तो ये वाली जो स्माइल है ना, ये स्माइल आ जाएगी और फिर आप अपने आप को बोलोगे ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके यार, मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। क्या
मेरे को स्ट्रेस लेने की। तो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते और हम अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। हमारी इतनी सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ बैठी हैं यहाँ पे, आप सब लोगों के जीवन में तो ज़्यादा आता है क्योंकि आप लोग ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती हो। यस, तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हाँ अब क्या होगा। अब इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आप चिंता में हो, आप दुखी हो, परहैप्स आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कमज़ोर हूँ और मैं संघर्ष कर रही हूँ और वो संघर्ष मेरे को जीवन में नीचे खींच रहा है कि शायद मैं किसी चीज़ में बेटर हो सकता था या हो सकती थी, और ये वो ज़िंदगी नहीं है जो मैं चाह रहा था, ये ज़िंदगी दूसरी है जो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करें? हमने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया, हमने अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर लिया, हमने एक्शन ले लिए, अब उससे भी वो चीज़ सही नहीं हो रही है, तो अब आप लोग इस कंडीशन में क्या करोगे? और एक तो आप लोग है ना वो कैमरा चालू करोगे तो वो मज़ा आएगा और इस टॉपिक को डिस्कस करने में। थोड़ा सा ऐसे वो वाला टॉपिक है कि हाँ जहाँ हम लोग सब बातें करेंगे, चीज़ें करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ग्रेट, जो जो कर सकते हो कर लो, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं। ग्रेट। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप अपने आप को क्या बोलोगे उसमें? कोई तो बताओ, बताओ निशा जी, आप बोल रही हो नहीं नहीं मैं दुखी नहीं होती हूँ, आप बताओ क्या करते हो उस चीज़ में? ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी को चाय कॉफी पिलाएंगे और उनको टाटा बाय बाय करके भेज देंगे। हमने तो आपसे चलिए। यही सीखा है। चलिए ग्रेट, इसको थोड़ा सा बहुत Dear अच्छा है ये। हाँ सोनल जी आओ, आज तो अब खतरनाक आंसर्स आ रहे हैं आपके, आप आ गई अब कैमरा पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ बताओ। भैया लेट गॉड करेंगे उसको और ईश्वर पे छोड़ देंगे, चलिए क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है ना। हाँ चलो, ये सारी टॉपिक मैंने पहले लिए हुए हैं पर मैंने वापस कुछ लोगों के लिए मैंने लिया हुआ है कि हाँ ठीक है वापस से इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पर कुछ एक्साइटमेंट लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं यार, सब तो सबने बताया हुआ है। देखो मेरे साथ जब ऐसा होता है तो मैं अपने आप को एक ही शब्द बोलता हूँ और वो शब्द होता है दिस वॉजंट माई चॉइस। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए है, सबके साथ आती है, एक हार्डशिप, एक संघर्ष सबकी लाइफ में आता है। मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि मैंने ये चूज़ नहीं किया, मैंने ये चूज़ नहीं करा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैंने ये चूज़ नहीं किया कि मैं इस इशू के साथ स्ट्रगल करूँगा। अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं कुछ और चुनता, पर कोई चॉइस नहीं थी, पर कोई चॉइस नहीं थी। चीज़ें जो हैं वो वैसी ही हैं, मेरे चिंता करने से या मेरे को स्ट्रेस लेने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। ये जो ताकतें हैं, ये जो फोर्सेस हैं, ये मेरी लिमिट के बाहर हैं। आज मैं अपने संघर्ष को, मेरी हार्डशिप को एक्सेप्ट करता हूँ। आज मैं अपनी हार्डशिप को, जैसे सोनल जी ने बताया, एक्सेप्टेंस, आज आपको अपने आप को ये कहना है कि मैं अपने स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप को एक्सेप्ट करता हूँ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट, I accept my struggles and hardship and will do my best. ये सबसे पहला स्टेप है। आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, सो यू विल थिंक अरे यार लाइफ 50% शॉर्ट हो गई, मैं जो कर सकता हूँ बेस्ट मैं कर रहा हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने आप से ये पूछूंगा, वॉट मोर आई कैन डू, ये सवाल मैं पूछूंगा। डूइंग माई बेस्ट इज इनफ, वॉट मोर आई कैन डू। समझ में आ रहा आप लोगों को? मैं अपने आप से ये बोलता हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, मैं जो हूँ मैं वो हूँ।
आई एम व्हाट आई एम। मैं रिजल्ट हूँ, मैं परिणाम हूँ अपने जीन्स का, अपने एनवायरनमेंट का, मेरी अपब्रिंगिंग का, जिस तरीके से मेरे को पालन पोषण दिया गया है, जिस तरीके से मेरे बिलीव्स डेवलप करे गए हैं, जिस तरीके से मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे सिबलिंग्स ने मेरे को सिखाया है, मेरे टीचर्स ने मेरे को सिखाया है, जो मेरे भविष्य में मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस ने मेरे को सिखाया है, मैं उसका परिणाम हूँ। मेरे को चूज़ करने को नहीं मिला था। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता हूँ और अपने आप के साथ और अपने सफरिंग के साथ जी सकता हूँ, और उसके लिए जो भी मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आज कोई भी बच्चा, आज आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होके बदतमीज़ हो जाता है तो वो गलती किसकी है? यहाँ तो वो अपने दोस्तों से कुछ सीखा है, या आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए, राइट? या उसको कोई गलत तरीके से ट्रेन कर रहा है। तो गलती उसकी तो नहीं है ना, उसके बिलीफ में डाला गया है कि इस तरीके से व्यवहार करना सही है। तो आप अपने आप को, जब आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दीजिए प्लीज़। अपने आप से ब्लेम करना बंद कीजिए। जो जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एम्ब्रेस कीजिए और एक्साइटेड हो जाइए कि यस, मैं कहीं ना कहीं तो पहुंच जाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं तो पहुंच जाऊंगा। सो ये जो पॉइंट है, ये इसलिए बताना चाह रहा था। इसमें एक बहुत खूबसूरत सी लाइन एक किताब से ली गई है मैंने, वो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको पढ़ो आराम से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नकारात्मक हो जाओ और अपने आप को हेल्पलेस विक्टिम की तरह फील करो। इसका मतलब ये होता है कि आप आपके जीवन में जो संघर्ष है उसको एक्सेप्ट करके और सेल्फ कंपैशन के साथ अपने आप को देखो। रोज रात को या सुबह को पलंग पे और अपने लिए हाय बेचारा मैं, बेचारी मैं, ये सब करके अपने आप को फॉरगिव कर दो और आगे मूव ऑन। अपने आप को फॉरगिव करके, ऐसा कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं है जिसके जीवन में तकलीफें नहीं हो। यस, कोई है तो आ जाओ कि नहीं सर मेरे जीवन में तो कुछ संघर्ष आते नहीं, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो सेहत में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो किसी में भी हो। सबकी लाइफ में कोई ना कोई संघर्ष है। तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है एक्सेप्टेंस विद सेल्फ कंपैशन। इज दिस क्लियर? सो फार सो गुड? गिव मी a yes और say yes। यस भैया, यस भैया। यस भैया। So we all accept our struggles and Yes. hardships। Great। आगे बढ़े। यस भैया। यस नो, बहुत स्लो है। कृष्णा जी बोल रही बहुत स्लो। कृष्णा जी बताओ ना यार, हमारे को भी कुछ आइडिया दो। कहाँ है कृष्णा जी? तो उसका नाम दीपा है, हमारी सिस्टर है, मेरी सेकंड नंबर की। अच्छा उसको आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, बहुत स्लो है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? मतलब मुझे Is समझ this- में नहीं आ रहा, आप बोल रहे हैं ना तो थोड़ा स्लो सुन रहे हैं। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेरा वो फ़ैन ऑन है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। 1 सेकंड। आप लोगों को पहले ही बता देते थे कि आवाज़ नहीं आ रही है। अभी रुको, मैं इसको सही करता हूँ। तो फिर फ़ायदा क्या? मैंने इतनी देर मेहनत करी, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई दिया, सर हम को सुन रहा है। सुनाई दिया सर। सर सुनाई सुनाई दिया हाँ। भैया। मेरे स्पीकर में प्रॉब्लम है या किसी और में प्रॉब्लम है? ये पहले आपकी आवाज प्रॉपर आ रही थी, अब नहीं आ रही है? अब आ अब रही है। अच्छी आ रही है, अब स्ट्रांग आ रही है। अब स्ट्रॉन्ग है, अब अब बराबर। अब चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा मैं। ठीक, 1 सेकेंड देखो, ये साउंड ऑफ नहीं हो रहा है आज, कोई इश्यूज आ रहे हैं मेरे को। एनीवेज लेट मी जस्ट गायब ट्राई अगेन। सॉरी। अब जो है वो है, उसको एक्सेप्ट कर लो। ये संघर्ष आ रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लो। मैंने कोशिश कर ली, नहीं हो रहा, बस यही आवाज़ है बस। नहीं, अब आ रही है। चलिए मेरे great। समझ में नहीं आ रहा।
तो मैं इसको अब जोड़ जोड़ से बोलता हूँ। चलिए ग्रेट। तो पहला तो पॉइंट आ गया, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यस आई एक्सेप्ट माय स्ट्रगल्स। अब दूसरा पॉइंट मैं आप सब लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ कि जब अगर आपने स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर लिया, स्विमिंग कौन कौन करता है? स्विमिंग कौन कौन जानता है यहाँ पे? पानी किस किस को पसंद है? जैन सर बोले मेरे को पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। तो अब ये जो आइडिया है ना बहुत अच्छा, मेरे को भी बहुत पसंद है क्योंकि मैं भी स्विमिंग करता था और अभी भी करता हूँ और अच्छा स्विमर था। मैं राजस्थान का कैप्टन था काफ़ी टाइम तक। तो ये मैंने इसलिए ये ले लिया कि यार ये जब आप समुंदर के बीच में जाते हो तो आपको फ्लोटिंग आनी चाहिए। आप अगर जीवन में संघर्ष करोगे और लड़ोगे जो परिस्थितियां हैं तो वो आपको कोई अच्छा रास्ता नहीं दिखाएंगे। अब जैसे आप लोग देखते हो कभी भी पानी के पास जाते हो, रिवर के पास जाते हो तो देखते हो एक प्लास्टिक की बोतल है, वो पानी के ऊपर पड़ी रहती है, राइट? उसको जहाँ पानी ले जाता है वो वहाँ चली जाती है। यस और नो? यानी चली कोशिश करती है कि नहीं मैं लहरों के अगेंस्ट जाऊंगी और लड़ूंगी, नहीं ना? तो हम लोग भी अपने आप को अगर फ्लोट करना सीख जाएं, आप बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं आपके जीवन में और आप उनसे लड़ना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं उन लहरों को, ये वाला जो राइट वाली जो फोटो है ये दिख रही है, ये बंदा कूद रहा है इन लहरों से, मैं लड़के और आगे निकल जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता ना। लहरें आपको वापस से धक्का दे देती हैं, वापस से कोने पे बीच पे लाके पटक देती हैं। बॉम्बे वाले तो मेरे से अग्री करेंगे ना, आप लोग तो रोज़ ही देखते हो समुंदर को। आप कितना ही चले जाओ पानी के अंदर लड़ने के लिए, आगे जाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं तो मैचो मैन हूँ, मेरे जितना मतलब योद्धा तो कोई है ही नहीं, फिर वो वापस लाके आपको कोने पे पटक देती हैं। तो ये जब संघर्ष वाला ओशियन होता है, इसमें स्विमिंग करना बकवास है। ये जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, ये बहुत स्ट्रांग हैं और सिर्फ आपको थका देंगी और कुछ नहीं करेंगे। तो ये सारा जो स्ट्रगल, ये स्ट्रेस और जो हम दांतें यूँ चुबाते रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आप बहुत खुश रहोगे जब आप अपने आप को पीसफुल फ्लोट करना सिखा दोगे कि हाँ मेरे को बस अब ये जीवन है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और अब मैं लड़ूंगा नहीं, मैं स्विमिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं फ्लोट करूँगा आज से। आई एक्सेप्ट दैट आई विल फ्लोट फ्रॉम टुडे, आई एक्सेप्ट आई विल फ्लोट फ्रॉम टुडे। जब आप सरेंडर कर लेते हो समुंदर के बीच में, जैसे ये बंदा करके बैठा है लेफ्ट में, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं फ्लोट करूँगा और इसको मालूम है कि ये लहरें मेरे को मेरे कोने पे पहुंचा देंगी, एक ना एक दिन मेरे को जहाँ पहुंचना है कहीं ना कहीं मेरे को पहुंचा देंगी, मेरे को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, संघर्ष मेरे को अंदर खींचेगा नहीं, मेरे को किसी ना किसी कोने पे ज़रूर पहुंचा देगा, राइट? तो पहला एक्सेप्टेंस। दूसरा, फ्लोट करना सीख जाओ कि हाँ जीवन में जो परिस्थितियाँ हैं उनके साथ हम फ्लोट करना सीख रहे हैं। किसी की कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, कोई धन बिना उदास है। तो इन स्थिति में आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसका जो सबसे बढ़िया तरीका है बेसिक सरेंडर। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली क्या है? ये एक रिलैक्सेशन है, एक विश्वास है, एक एटीट्यूड है, आपका एक रवैया है कि आप जब अपने आप को बोलने लग जाते हो कि मैं लड़ नहीं रहा, मैंने सरेंडर कर दिया, जीवन मेरा, लाइफ इज़ नॉट माई एनिमी। मेरी जो लाइफ है मेरी एनिमी नहीं है, ये मेरा दोस्त है और मैं जिस समुंदर में हूँ मेरे को विश्वास है अगर मैंने इसको एंजॉय करना चालू कर दिया तो ये मेरे को सही कोना दिखा देगा। जीवन एक रिवर है, लाइफ इज़ अ रिवर, आइदर यू कैन फाइट और यू कैन फ्लोट। प्लीज़ राइट इट डाउन, लाइफ इज़ अ रिवर, ये ओशो बोलता है, लाइफ इज़ अ रिवर, आइदर यू कैन फाइट और यू कैन फ्लोट। या तो आप कोशिश करो
और अब जो बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करो और संघर्ष करो और अपने आप को ग्रिप करते रहो। हाय जीवन, हाय जीवन। या आप सीख जाओ कि मेरे को इसके साथ फ्लोट करना है। और अब इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले भी रिपीट किया था, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस लाइन अगेन। और ये लाइन मैं चाहता हूँ आप लोगों के जहन में आ जाए। जहन समझते हो क्या होता है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाना है। सब मैं चाहता हूँ एक बार एक्टिव हो जाए, क्योंकि ये लाइन ऐसी है जिसने मेरा जीवन बदला है। तो मैं चाहता हूँ इस लाइन को आप भी तरीके से पढ़ो। सब जो भी काम कर रहे हो रुक जाओ, और अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको ढंग से देखो। पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ये वापस से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आप में से किसी ने बोला कि सर एक बार में सेशन घुसता नहीं है, एक सेशन को आप 3-3 4-4 बार लिया करो, तो जैसे वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर दे। राइट मनीषा जी, आपको याद आएगा। मैं चाहता हूँ एक बार आप इसको जोर से पढ़ो, अनम्यूट करके। A bad day for your ego is a good day for your soul. Beautiful. समझ में आएगा आपको कि ये बड़ा कंफर्ट लेवल देगा आपको। जिस दिन आपका अहंकार को ठेस पहुंचती है, उस दिन आपकी आत्मा और ऊपर उठती है। हम ये सारी चीज़ें, कुछ लोग होता नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। अगर आप इसका पॉजिटिव साइड देखो, अगर आप ईगो का पॉजिटिव साइड देखो, तो जब जब आपकी ईगो को ठेस पहुंचता है, जो दर्द आपको होता है, वो दर्द आपके लिए कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, ह्यूमिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको दे के जाता है। अब समझाऊं क्या मैं इस बात को? जिसको नहीं समझ में आया मैं इसको डेप्थ में समझाऊं। एक बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी किताब से, मैं चाहता हूँ एक बार इसको आप पढ़ो और फिर आई विल एक्सप्लेन दिस एंटायर लाइन टू यू, ऑल ऑफ यू। कौन कौन अग्री कर रहा है मेरे से? नहीं, आई एग्री। चलो Totally agree, भैया. जो जो पढ़ सकते हैं एक बार पढ़ो। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जगन्नाथ महेश नहा लेगा, भैया को देरी है अभी। नहीं नहीं, मत ना हो मंजुला जी। Anyway, Loss is perception based on egos. Loss is a presumption based on the ego's perception and ego's loss is very unusual. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ देसी भाषा में तरीके से। होता क्या है कि हमारे को कई बार ऐसा लगता है कि हमने कुछ खो दिया है। राइट? खो दिया मतलब कोई पैसे, कोई रिश्ता, कोई सम्मान या कोई मौका। इसलिए हम लोग अपसेट हो जाते हैं। पर सच क्या है? आप लोग जब अपसेट होते हो जीवन में, या तो हमने कोई रिश्ता खो दिया, हमने कोई पैसा खो दिया, हमने कोई सम्मान खो दिया, हमारे को कोई मौका नहीं मिला, राइट? हमको ऐसा लगता है। पर जीवन की हकीकत क्या है? ये हमारे साथ नहीं होता, ये हमारे अहंकार की सोच होती है, ये हमारा ईगो हमको कहता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कट्टा जी आए, कट्टा जी ने मेरे को आज कुछ कह दिया इतने सारे लोगों के सामने कि मैं आपकी बात से अग्री नहीं कर रहा। राइट कट्टा साहब? अब आज कट्टा जी ने कह दिया और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट जाके मेरे को गलत प्रूफ कर दिया।
कट्टा जी ऐसा कर रहे हैं। अब ये क्या है कि मेरे को लगा कि मैंने मेरा रिस्पेक्ट खो दिया, मेरे को ये लग रहा है मेरा रिस्पेक्ट खो दिया, बट असल में क्या, ये मेरी अहंकार की सोच है, ये मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा है। मैं अपने आप को ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा नुकसान हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, इतने सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब हो गई। बट क्या सच्ची में हो गई या ये मेरा अहंकार है जो मेरे को ये सब सारी चीज़ें कह रहा है? कट्टा साहब, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस भैया, यस। अगर आज आप मेरी बात से सहमत नहीं हो और आपने कुछ बोल दिया, तो मेरे को ये मेरी प्रॉब्लम है या मेरी ईगो की प्रॉब्लम है? ईगो की। वो ये मेरी मेंटली ईगो की। सेट है, वो हाँ, मेंटली सेट है दिमाग में कि 5 जनों के सामने मेरी बात खराब हो गई, हाँ। या वो सोच इस तरीके की सेट हुई हुई है। पर हकीकत बात यह है, मेरे को ऐसा लगता है मेरा नुकसान हो गया, मेरे साथ गलत हुआ। प्रॉब्लम ये नहीं है मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन असल में जो मेरे को मेरा नुकसान लगता है वो मेरा अंदर का विकास है। वो एक मौका है मेरे को ये समझाने का कि हर इंसान अलग बिलीव्स के साथ होता है। हो सकता है कि कट्टा जी गलत हों, पर कट्टा जी ने मेरे को इमोशनली और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मैं अपनी ईगो को छोड़ दूं, मैं अपने अहंकार को छोड़ दूं। मेरे को मेरी बात प्रूव करने के लिए दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं उसमें कॉन्फिडेंस हूँ। कट्टा जी अग्री नहीं करते, वो उनका बिलीफ सिस्टम है। वो डेमोक्रेटिक कंट्री में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, और ऐसा हुआ है पहले किसी सेशन में। तो मेरे को अपनी ईगो को छोड़ना वो सिखा रहे हैं। वो मेरे को ये बता रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ मेरे को आप लोगों के वैलिडेशन की ज़रूरत है। ये मेरा बिलीफ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। छोटी छोटी बातें जीवन में होती रहेंगी, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप अंदर से सिक्योर हो, अगर आप अंदर से सिक्योर हो तो वो, अब अगर ये इंसिडेंट एक्चुअली हकीकत में आज हुआ है तो मैं ग्रेटफुल हूँ कट्टा जी का, क्योंकि उन्होंने मेरे को ग्रोथ के पास पे लेके गए हैं, मेरे अहंकार को छोड़ के। कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी मैंने अपनी ईगो को ज़्यादा वो नहीं दिया, और मैं स्पिरिचुअली मेंटली ग्रो होके, स्पिरिचुअली और मेंटली ग्रो होके और सिक्योर हो गया। बाहर कुछ भी हो गया हो, आज पूरे दिन भर में या तो मैं टेंशन लेके कि कैसे बोल दिया कट्टा ने साले को, मैं देखता हूँ, फ़ोन करके लड़ूंगा, गालियाँ करूँगा, या तो मैं अपना इनर पीस को डिस्टर्ब कर सकता हूँ। राइट, पूरा दिन काम नहीं करूँ, ऑफिस में ध्यान नहीं दूँ, दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं करूँ, अपनी अंदर की शांति को डिस्टर्ब कर दूँ। यहाँ कट्टा जी ये बार बार मेरे को ट्रिगर करते रहते हैं, हर सेशन में आके मेरे को ट्रिगर करते रहते हैं। इन्होंने मेरे को इतना इम्यून बना दिया कि मेरे को अब छोटी बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जो लोग आपके जीवन में ऐसा हैं, आप उनके लिए शुक्राने रखो कि वो आपको इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो बार बार आके ट्रिगर करते हैं आपको, वो आपके अहंकार को थोड़ा साइड रख दो और आप उनके लिए शुक्राने करो कि यार वो लोग मेरे को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सब कुछ टेम्परेरी है, आपकी बॉडी टेम्परेरी है, सिचुएशंस टेम्परेरी है। जब जब आप ऐसा सोचने लग जाते हो तो आपका डर कम हो जाता है और अंदर की एक शांति आ जाती है। तो ये जो बोलना चाह रहा है, ये यही बोलना चाह रहा है। और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं यही शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब जब बैड डे फॉर द ईगो इज गुड डे फॉर द सोल। इज दिस क्लियर? Yes. समझ में आ गया सबको या नहीं आया समझ में? मैं अपने अहंकार को लेके जीवन भर रो सकता हूँ। यस, पूरी लाइफ लॉन्ग इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। या मैं एक्सेप्ट करके ये बोल सकता हूँ कि यार उसने मेरे को और मजबूत इंसान बनाया है, और मैं दिल से शुक्राने देता हूँ उसको, क्योंकि अब मेरे को छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी चिक चिकों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जीवन में संघर्ष भी इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया कि संघर्ष सह के वो पुराने संघर्षों का मैं शुक्राना करता हूँ कि अब जो भी संघर्ष आता है ना, तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये भी टल जाएगा। अब मनीषा जी ने बहुत लाइफ में संघर्ष देखा है, पर अब ये थोड़ा सा उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि हाँ, अब ये जीवन में संघर्ष भी आया ना, तो मैं उसको खड़े होकर सह लूँगी और चल जाऊँगी, एक्सेप्ट कर लूँगी। वी ऑल आर गेटिंग टूवर्ड्स दैट फेज ऑफ लाइफ, बट कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं ये वापस से रिवीजन करना चाह रहा था। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है लोगों को? कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि आप अपने जीवन में स्थितियाँ हैं, कोई बताना चाहता है मेरे जीवन में ये स्थिति आ रही है और ये इससे, हाँ, मैं यहाँ पे मेरी ईगो की प्रॉब्लम थी, मेरे यहाँ पे मेरे एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम थी जो मैं नहीं कर पा रहा। एक चीज़ आप समझो, हम सब ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसानों में एक चीज़ कॉमन है कि हम सब एक्सपीरियंस करते हैं चैलेंज और अंदर के जो इवेंट्स होते हैं, पेनफुल इनर इवेंट्स। हमारे जीवन में बहुत संघर्ष होता है। कोई जीवन में कुछ चाहता है, उसको मिल नहीं पा रहा। कोई जीवन में कुछ चाहता है, वो मिल नहीं पा रहा। वी ऑल एक्सपीरियंस थॉट्स, फीलिंग्स, हम सब लोगों को एक्सपीरियंस, बिकॉज हम इंसान हैं, तो विचार, भावनाएं, इमोशंस, फिजिकल सेंसेशंस, कभी कभी पेट में गुड़गुड़ भी होने लग जाती है, जो हमारे को अनकंफर्टेबल कर देती है और हम उसको बेयर नहीं कर पाते। सॉरी गट्टा साहब, आप ये मत बोलो सर मेरे को ही पकड़ लेते हैं। आपकी शक्ल ही ऐसी है कि मैं हर बार आपके साथ ही एग्जाम्पल लेता हूँ। नहीं, इट्स गुड, इट्स गुड। मैं अभी आपने जब पूछा ना कि आपके साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ है, तो रिसेंटली भी मेरे साथ 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था। उसमें हल्का सा ईगो मेरा आड़े आ गया था और मैंने सोचा भी था कि उस व्यापारी के पास अभी थोड़े दिन नहीं जाऊंगा, फोन नहीं करूंगा। बट इवेंचुअली सेकेंड डे ही हमारी दोबारा मुलाकात भी हो गई। मैंने उस चीज को, बात को कहते हैं ना, दरकिनार भी कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, व्यापारी है, अपने को काम करना है, जीवन भर काम करना है, आगे बढ़ना है। उस चीज को लेके बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं है। जय बात, हमारे कट्टा साहब धुरंधर बन गए। धुरंधर तो आपने बना दिया ग्रेट। भैया। ग्रेट। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि हम सब लोगों के अंदर ऐसे ऐसे इनर एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बड़े चैलेंजिंग होते हैं, जो हमारे थॉट्स को डिस्टर्ब करेंगे, हमारी फीलिंग को डिस्टर्ब करेंगे, हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब करेंगे। हमारे अंदर जो फिजिकल सेंसेशन होते हैं, डर लग रहा है तो पेट में, गुस्सा आ रहा है तो, स्ट्रेस होने लग गया है तो पेट गुड़गुड़ करने लग गया, बाथरूम जाना पड़ रहा है बार बार, अच्छा नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती रहती हैं जो हमारे को अनकंफर्टेबल करती हैं। पर अगर आप इन चीज़ों के साथ डील करना सीख जाओगे, आपके प्राइवेट एक्सपीरियंस, इनको मैं क्या बोलता हूँ, व्हाट डू वी कॉल देम, प्राइवेट एक्सपीरियंस। आप इन प्राइवेट एक्सपीरियंस के साथ डील करना सीख जाओगे तो ये जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने आप को गिफ्ट दे सकते हो। इसको बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे ऊपर कुछ नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। इमोशनल इंटेलिजेंस विच इंक्लूड्स रेगुलेटिंग वंस इनर वर्ल्ड इन हेल्दी वे। इसका मतलब क्या होगा, आप अपने अंदर वाले दुनिया को किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हो, जैसे कि आप एक हैप्पी और प्रोडक्टिव लाइफ जी पाओ। इसको कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हम सब इंटेलिजेंट लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंट डेवलप करनी है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने आपको बताया इनर एक्सपीरियंस के बारे में। अब आपको एक ये पढ़ लो, नुकसान सिर्फ हमारे अहंकार की समझ है और अनुमान्य मूल्यों के आधार पर एक अनुमान है। सामान्य तौर पर अहंकार की हानि सिर्फ एक भ्रम होती है और इसके बजाय स्वयं को लाभ होता है कि हाँ, हमारा अहंकार हमारे को लाभ पहुंचा रहा है। ये हमारी सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। ये सब वही लिखा हुआ है। मैंने हिंदी में ये कोशिश करी ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिखने के लिए, जो डेविड हॉकिन बोल रहा था। मैंने आप सब लोगों को ये चीज़ समझा दी, तो मैं इसमें नहीं घुसा। अब दूसरी चीज़ ये है, इनर एक्सपीरियंसेस की बात करने पहले अपने आप को बोलना यू विल बी ओके। और अब ये चीज़ है, अब ये चीज़ आप लोगों को याद है कि मैंने पहले भी डिस्कस करी है। अब ये कौन है? ये तो है कट्टा साहब। मेरा ये दिख रहा है क्या? हाँ, ये तो है कट्टा साहब और ये है कट्टा साहब का, सॉरी,
इनर एक्सपीरियंस क्या है? इनर एक्सपीरियंस। अब जब मैं इनर एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, जैसे इसको मॉन्स्टर बोलूँ या इसको राक्षस बोलूँ, तो ये जो इनर एक्सपीरियंस है, ये इनर एक्सपीरियंस या तो डिप्रेशन हो सकता है, या फियर हो सकता है, डर हो सकता है, या गिल्ट हो सकती है, या शर्म हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस करते हो, ये सारी चीज़ें ये वो हो सकती है, राइट? अब अगर आज कट्टा साहब ये देख लें कि मैं और मेरे राक्षस के बीच में एक पिट है, और अगर आज मैंने इस राक्षस को खींच लिया और मैंने इसको नीचे गिरा दिया, तो मैं ये जंग जीत जाऊंगा। मोस्टली यही होता है कि आज हम रस्साकसी खेल रहे हैं, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस राक्षस को नीचे गिरा दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। बट हकीकत बात ये है, इसको प्लीज़ समझने की कोशिश करना, आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, आप चाहे कितने ही एफर्ट लगा लो, इम्पॉसिबल है कि ये राक्षस जो है, ये जो मॉन्स्टर जिसको मैं कह रहा हूँ, ये मॉन्स्टर आप खड्डे में गिरा दोगे। आप चाहे कितनी एनर्जी लगा लो, कितनी ताकत लगा लो, ये मॉन्स्टर खड्डे में नहीं गिरेगा। आप इसके साथ हमेशा लड़ते रहोगे, आप इसके साथ स्ट्रगल करते रहोगे, फाइट करते रहोगे, और आपको ऐसे लगेगा कि मेरे पास चॉइस ही नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि हम एक जंग में खड़े हैं, हम एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनर एक्सपीरियंस की बात करो, समझ में आ रहा है? ज़्यादा ऊपर से तो नहीं जा रहा ना लोगों के। आपका डर, आपकी गिल्ट, आपकी शर्म, दुनिया क्या सोचेगी, आपका डिप्रेशन, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस आपके अंदर चल रहे हैं, इनके साथ आप लड़ रहे हो। ममता जी, थिंग्स आर गेटिंग क्लियर? होता है ना, चाहे कितना ही हम लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाएं, पर ये इनर एक्सपीरियंसेस हमारे को खींचते हैं, ये हमारे को खींचते हैं। ये कांस्टेंट फाइटिंग, ये एकदम जो ये लड़ाई है, ये चलती रहती है, और हम ये सोचते रहते हैं एक दिन तो हम इस राक्षस को गिरा के रहेंगे, और हम इसी में ही अपना जीवन निकालने लग जाते हैं, और इसलिए हमारे को हैप्पीनेस की कमी हो जाती है, इसलिए ही हैप्पीनेस की कमी हो जाती है। तो अब ऐसे डिलेमा में करा क्या जाए? जब ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी चीज़ें हो गई, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? What can we do? डाइवर्सिफाई ऑफ माइंड। माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अपने आप के, अपने माइंड को, अपनी सोल को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि ये आपके ऊपर हावी नहीं हो। ओके, चलो देखते हैं। चलो, कट्टा साहब ने ये एग्जाम्पल दे दिया कि ऐसा कर सकते हैं, पर कट्टा साहब ने करा क्या? अपन उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखें। बिल्कुल। एक्साइटेड हो आप लोग देखने के लिए कट्टा साहब ने क्या किया? कट्टा Yes. साहब ने क्या किया कि ये रहे इनके सेल्फ डाउट, ये रही इनकी अनवर्दीनेस, ये रही इनकी एंग्जाइटी, ये रही इनकी सैडनेस, ये रहा इनका डर, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। ये हमारा इनर एक्सपीरियंस चलता रहता है। समझ रहे हो ना, हमारे अंदर क्या क्या चलता रहता है हर वक्त। और ये कट्टा जी बोला, आजा, तू जानता नहीं है मैं कितना बड़ा धुरंधर हूँ, मैं तेरे को खड्डे में गिरा के रहूँगा। और लड़ते रहे। फाइनली एक दिन जब थोड़े से ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुए, तो ये लड़ते रहे, ये और बड़ा होता गया। सीखते रहे, ये और बड़ा होता गया। बोला, तू लगा ले, तेरे को जितना जोर लगाना है। पर जब इनके जीवन में थोड़ा सा ज्ञान आया, तो इन्होंने एक ही चीज़ सोची कि मैं रस्सी छोड़ देता हूँ। मैं रस्सी छोड़ देता हूँ। और रस्सी छोड़ने के बाद उस राक्षस का क्या हाल हुआ? उस राक्षस का हाल आपके सामने। So basically the moral of the story was
कि आप उस राक्षस को छोड़ दो। आप ये जो रोप है, आप अपना माइंड डाइवर्ट करने की जगह आप आज ही लड़ाई ख़त्म कर दो। ये जो मॉन्स्टर है इसको घूमने दो, इसको छोड़ दो भाई, तू चिंता मत कर। आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप अपना जीवन उसके साथ, ये जो राक्षस है आपके आसपास घूमता रहे, आपके साथ सोफे पे बैठा रहे, आप उसके साथ बैठ के भी जी सकते हो। और ये सच्ची में बिल्कुल डरावना और डिस्ट्रक्टिव नहीं है। जब आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो आप अपना फोकस बदल देते हो चीज़ों को देखने का। आप एक्साइटेड हो जाते हो, आप उसके साथ बैठते हो और उसके साथ चाय पीने लग जाते हो। पर ये जो मॉन्स्टर है ना, आपको बार बार उंगली करता रहेगा। ये जो राक्षस है बार बार आपको उंगल करता रहेगा, आपको टॉन्ट करता रहेगा, आपको बार बार बोलेगा उठा रस्सी उठा, रस्सी उठा, रस्सी उठा, रस्सी उठा। बट अगर आपने वो रस्सी उठा ली तो फिर आप उस कचरे में चले जाओ। उसको बोल दो यार तू बैठा रहे और तू मेरे को जो भी बोलता रहता है मेरे साथ चाय पी ले, पर मैं वापस से रस्सी नहीं उठाने वाला। मैं जीवन में वापस से रस्सी नहीं उठाने वाला। इज दिस क्लियर? आई एम नॉट पिकिंग अप द रोप अगेन, बिकॉज सम विच वेयर आपको मालूम है कि ये जो इनर एक्सपीरियंसेस हैं ये बड़े पावरफुल हैं और आप इनसे नहीं लड़ सकते। आप इनसे नहीं लड़ सकते। सो एक बेसिकली जो इस सारी चीज़ों का मतलब क्या था, मतलब ये था कि हम लोग ज़बरदस्ती पॉइंटलेस हो जाते हैं कभी कभी अपने एक्सपीरियंसेस से लड़ने के लिए, अपने प्राइवेट एक्सपीरियंसेस की लड़ने के लिए। तो आप उनको छोड़ दो, उनको सप्रेस करना, उनको धक्का देना, उनसे दूर भागना, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखना, ये सारी चीज़ें उन सब इनर एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंग्लिश में ये सेइंग है, सफरिंग इज इक्वल्स टू पेन इनटू रेजिस्टेंस। जिस चीज़ को आप रेजिस्ट करोगे वो परसिस्ट करेगी और बड़ी होती जाएगी। क्या? अब अगर आप, मैं वापस से इस वाले पे जा रहा हूँ, मैंने ये जो फ़ोटो दिखाया आपको इसलिए दिखाया, ये जो प्राइवेट एक्सपीरियंसेस जो कट्टा जी के थे, पहले तो इतने थे, पहले इतने थे और जब तक ये रेजिस्ट करते रहे ये और बड़े होते गए। और जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैंने छोड़ दिया है, इसको गिरना है, इसको पढ़ना है, इसको मेरे बगल में आके बैठना है, तब सारी चीज़ें सेटल होने लग गई। और आप सब लोगों को बार बार हर सेशन में मैंने यही बताया है कि हमारे अंदर एक ही मैजिक है, एक ही सिंगल पावर है, एक ही सिंगल सैल्वेशन है, जिसको क्या बोला जाता है? बताएगा, जो बताएगा उसको गिफ्ट। जो बताएगा उसको गिफ्ट। No overthinking. लेट गो। चलो लेट्स सी। इतनी देर से मैं एनर्जी दे रहा हूँ, बताओ, जवाब दो। सब इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइन लोग हो यहाँ पे, और मैं बहुत बार बोला ये शब्द और मेरे मुंह से तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं। चलो गिव अप कर दो, बोलो सरेंडर कर दिया सर, आप मॉन्स्टर हो, आपके सामने सरेंडर कर दिया। सो बेसिकली नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है उस वर्ड पे। सो एक ही सिंगल पावर है, एक ही सिंगल सैल्वेशन है, जिसको कहा जाता है लविंग, जिसको कहा जाता है लविंग। सो स्टार्ट लविंग योर सफरिंग, लव योर सफरिंग। आप उससे रेजिस्ट मत करो, उससे भागने की कोशिश मत करो, इवेंचुअली वो आपको हर्ट करेगा। अप्रोच क्या है जीवन में? रस्सी छोड़नी है। जो चीज़ आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जो प्राइवेट इवेंट्स आप बदल नहीं सकते, उनको सिर्फ देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनको जज नहीं करना है। अगर जज करने की कोशिश करोगे तो आप उनके दुश्मन बन जाओगे।
आप उनके दुश्मन बन जाओगे। तो उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप लव करो, ठीक है, ये जो सफरिंग आई है ये भी मुझे कुछ सिखा के जा रही है। ए ऊपर वाले, तेरे से एक ही दुआ है कि मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेटर हो, और ये जो पिछला कदम है वो मेरे को क्या सिखा के गया है और कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बना के गया है, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। अगर वो संघर्ष नहीं आता, आज कट्टा जी व्यापार कर रहे हैं, अगर इनको स्टार्टिंग में जब व्यापार चालू किया था अगर उस वक्त नुकसान नहीं होता तो वो सीखते नहीं कि प्रॉफिट में कैसे आना। अगर पहला कस्टमर रिजेक्ट नहीं करता तो इनको समझ में नहीं आता कि माल बेचना कैसे है, राइट। तो हम जो अप्रोच लेके बैठे हैं, हमारा जो सोच लेके बैठे हैं वो यही है कि जो भी जीवन में सफरिंग आ रही है उसको प्यार करो और उससे सीख के आगे बढ़ो, उससे सीख के आगे बढ़ो। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा सब लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ? You know quite well deep within you that there is only a single magic, a single power, a single salvation, and that is called loving. Then love your suffering. Do not resist it. Do not flee from it. It is your aversion that hurts, nothing else. जीवन में जो संघर्ष आ रहा है, थोड़ा सा एटीट्यूड बदल ले। देखो, माइंडफुल एक्सेप्टेंस जरूरी है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो, जो सोनल जी ने स्टार्टिंग में बोला था, माइंडफुल एक्सेप्टेंस एक पावरफुल इमोशन रेगुलेशन स्ट्रैटेजी है जिसको आप सीख सकते हो, और जितना जल्दी उसको आप अपनी लाइफ में ले आओगे तब आप देखोगे कि आप ग्रो कर रहे हो। आपकी साइकोलॉजिकल और न्यूरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनमें नेगेटिव इफेक्ट और पेन होगा। कुछ किताब में ली हुई लाइन है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था तो मैंने ले ली। ये और बता रखा है कि जो लोग, another research conclude that individual who take a more accepting attitude of thoughts and feelings in the face of difficult experience can let go of distressing thoughts without dwelling on them, appear to be less reactive to a variety of form of stress। जब जीवन में स्ट्रेस आता है, आप लोग पेचकस लेके घुस जाते हो उसका इलाज करने के लिए, एक मैकेनिक बन जाते हो कि मैं इसको ठीक करके रहूँगा, मैं इसमें स्क्रू टाइट करके रहूँगा। प्लीज़ ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। यू हैव टू माइंडफुली एक्सेप्ट एंड अलाउ कि हम इस एक्सपीरियंस को। अच्छा, एक लाइन और लिख लो जाते जाते बिफोर वी एंड। दिस लाइन इज अ सुपर लाइन विच रियली हेल्प्स मी, तो हो सकता है आपको भी। माइंडफुल एक्सेप्टेंस will allow me to experience stress without distress। वापस रिपीट कर रहा हूं, माइंडफुल एक्सेप्टेंस विल अलाउ मी टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस विदाउट डिस्ट्रेस। जब आप प्रेजेंट होके एक्सेप्टेंस करने लग जाओगे तो वो आपको अलाउ करेगा कि आपके जीवन में जब भी स्ट्रेस आएगा वो स्ट्रेस आपको डिस्ट्रेस नहीं देके जाएगा। जब आप अपने प्राइवेट एक्सपीरियंसेस को और स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर लोगे तो वो आपके जीवन में जो ज़बरदस्ती का संघर्ष पैदा करता है, जो आपको डिसअपॉइंटमेंट फील कराता है, आपको दुखी फील कराता है, आपको गुस्सा दिलाता है, वो जीवन में कम होने लग जाएगा। और आप उसको और ख़राब नहीं बनाओगे लड़ने में, सप्रेस करने में, उसको धक्का देने में, उसको गंदी गालियाँ देने में, उसको डिसअप्रूव करने में। ये एक अप्रोच आपकी लाइफ की गेम चेंजर है। व्हाट डू यू कॉल इट? गेम चेंजर। लुकिंग इनटू माइंडफुलनेस एंड एक्सेप्टेंस, this is game changer, and I thought I'll discuss it with all of you because it is the need of the hour, it is the need of the hour। हम सब लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए, वाओ एमी आप लंदन से बैठी हो, रात के 2 बजे सेशन अटेंड करी हो, हैट्स ऑफ टू यू। हम सब लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल लर्न हाउ टू एक्सेप्ट mindfully
our experiences so that we can take stress without distress. Stress without distress. Remember that. नाउ टेल मी, कैसा लगा आज का सेशन? कुछ समझने को मिला या ज्ञान 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 ही रहेगा? और कौन कौन इम्प्लीमेंट करेगा ईमानदारी से? पहले एमी से सुनते हैं। एमी, लंदन में हो? हाँ, लंदन में हूँ। रात के 2 बजे हाँ। सोती नहीं हो तुम? एक्चुअली आज नींद ही नहीं आई, मेरे दिमाग में था कि आज आप लोगों से मिलना है। अच्छा। कल एक्चुअली सैटरडे है तो आज जग सकती हूँ। चलिए, ग्रेट। हमारे यहाँ तो आज ही सैटरडे है। हाँ, राइट। Anyway, so let's Nice get to see you, क्या nice to सीखने see को you. मिला आज? I want everyone, some of you to come and share what did you guys learn, because this is a very important, it is a very very important topic and everyone has to learn this emotional intelligence concept. मेरा एक क्वेश्चन है रवि भैया। हाँ, एक्चुअली दिस इज समथिंग मैं अभी रिसेंटली फील कर रही हूँ। तो ये सुनने में सही लगता है, पर जब वो सिचुएशन में हम लोग होते हैं तो उस वक्त इम्प्लीमेंट करना इज रियली डिफिकल्ट। पूरे साल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम आता है, क्वेश्चन खतरनाक हो जाता है, पर जब उसका यस, सही आंसर देते हैं तभी पास होते हैं ना। यस, तो यही है। आपने शायद रॉकी पाथ टू सेल्फ मास्टरी आपने अटेंड किया होगा, RPSM वाला सेशन हाँ, आपने किया था। हाँ किया था। हाँ, तो इसी को बोलते हैं, अगर ये इतना सरल होता तो हर इंसान खुश होता। हर इंसान हाँ, रवि राइट, हर इंसान रवि उस्मानी जैसे हंस रहा होता ना। हाँ, राइट, 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 तो इसलिए राइट, मेहनत तो करनी पड़ती है, खुद पे मेहनत करनी या पड़ती है, स्पेशली जब कंडीशंस, जब सर्कमस्टांसेस गलत हो जाते हैं, तब आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा। राइट, सो थिंग्स आर नॉट एज इजी। ये सारी बातें, ज्ञान तो अति पड़ा है, सब पूरी दुनिया ले रही है यार। राइट, ऐसे बरस रहा हूँ अभी, सोशल मीडिया आने के बाद तो हर जगह से बरस रहा है, पर उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है ये बताओ। ज्ञान की कोई कमी राइट। है? बहुत सारे लोग हैं, हर आदमी ज्ञान देना चाहता है हिंदुस्तान में तो, पर इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको स्मॉल स्टेप्स में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? लाइक थियोरेटिकली तो समझ में आ गया, बट छोटे छोटे कौन से स्टेप्स ले सकते हैं डे बाय डे कि वो इजीली हम इम्प्लीमेंट कर पाए? मेरे को रस्सी छोड़नी है। हम्म, मैं जो लिखवा रहा हूँ, जो लाइंस लिखवाता हूँ ना, अब आज कट्टा जी या के मन में जो भी एग्जाम्पल मैंने दिया, इनके जहन में घुस गया कि मेरे को राइट, मेरा दिमाग दूर नहीं करना। अगर मैंने मेरा दिमाग दूर किया तो मेरे अंदर वापस आएगा। इनका जवाब ये था कि वो राक्षस मेरे सामने खड़ा है तो मैं अपना माइंड दूर कर लूँगा। आपको क्या लगता है माइंड ऐसे दूर हो जाता है? माइंड नहीं इतना होता। इतना खराब माइंड है कि बार बार वंडर करता रहता है, इससे बेकार तो चीज़ ही नहीं है। बट अगर आज यस, इन्होंने रस्सी छोड़ के एक्सेप्ट कर लिया कि भाई तू आजा, तू मेरे साथ बैठ के चाय पी ले, तू बता दे तू मेरे को क्या सिखाना चाहता है बाबू, या तो इनका जीवन थोड़ा सा सरल होने लग जाएगा। अब आपके दिमाग में नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील सच थिंग्स, यू विल ऑटोमेटिकली टेल योरसेल्फ लीव द रोप, लर्न हाउ टू हैव अ कप ऑफ टी विद योर इनर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। यस, A bad day for the ego is good day Good day for the soul. for. So you have to, these lines which I'm telling you, the self-talk is very important. अगर कुछ चीज़ें जो आप लिखती हो, आप उसको पढ़ती रहो। जब जैसे जैसे चीज़ें लाइफ में संघर्ष आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं, मेरे को अपने आप को यही कहना है। आप मेंटली अपने आप को ये कहोगे कि ये मेरे को नहीं हर्ट किया, इसने मेरी ईगो को हर्ट किया यार। उसका बिलीफ है एक्सेप्टेंस। देयर आर नो बैड पीपल इन दिस वर्ल्ड। इट्स अनहेल्पफुल बिलीफ, इट्स अनहेल्पफुल एटीट्यूड। अभी क्या कर रहा है तू? मैं ले चीज़ें आ कर क्या? रहा हूँ। फूल ले आ, चाय पी के आयरन कर ले और फिर आराम कर ले। मेरे को भी दे दो आराम, थोड़ा देखेंगे सा घर थक गया हूँ जड़ेंगे मेरे जड़ेंगे साथ। नहीं। एनीवे, चलिए, ग्रेट। सो अर्चना जी, चाय उसको बाद में पिलाना, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सो आई मीन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली टेल योर सेल्फ दैट आई हैव टू वर्क ऑन दिस एंड दिस इज हाउ, एंड इट्स नॉट एन ईजी पाथ। धीरे धीरे मुश्किल होती है, जाओगे पर आप पहुंच जाओगे जल्दी, पर आप पहुंच जाओगे कि आपने आपको बताने के लिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है। TWA कर लिया, अब मैं जो कर सकता था कर लिया। अब मैं हाय जिंदगी, हाय जिंदगी, हाय जिंदगी। अब मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता। यहाँ पे एक लड़की बैठी है हु इज़ क्वाइट क्लोज टू मी, उसके जीवन में संघर्ष है, उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा।
बट व्हाट इज द पॉइंट, यू डूइंग योर बेस्ट टू गेट दैट, बट अगर वो नहीं मिल रहा तो आप सरेंडर करो Yes, एंड हैव द एक्सेप्टेंस फॉर दैट, yes. understanding. So this is how you train your brain to focus on things which you actually need rather than just trying to wander away from things. पहले तो acceptance, Loving your suffering. yes, loving your suffering. जीवन में संघर्ष आया है तो कुछ सिखा के जाएगा, मेरे को और Yeah, yeah. इमोशनली इंटेलिजेंट बना के जाएगा. ग्रेट. एनीवन एल्स? रूपा जी देखो आज भी ऐसे बैठी. हाँ भैया मेरा एक मन में कुछ सवाल है जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ आज. हाँ हाँ जी. डेली बेसिस पे बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी रहती है. बट होता क्या है, पिछले साल भर से मैंने कुछ चीजें इस तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया है कि अगर एक रास्ता मुझे बंद होता हुआ दिखता है ना, तो मैं उसके लिए पहले ही दूसरा ऑप्शन या दूसरा रास्ता या तीसरा रास्ते पे वर्किंग करना स्टार्ट कर देता हूँ और गिव अप नहीं करता हूँ. कोशिश ये रहती है कि एक रास्ता बंद हो रहा है तो दूसरे रास्ते को स्टार्ट करो और दूसरे रास्ते से जितना काम कंप्लीट हो सकता है उतना तो कम से कम करो. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. इन द मोड ऑफ पेमेंट मान लीजिए, इन द मोड ऑफ अपने प्रोडक्शन के मान लीजिए, किसी भी चीज के मान लीजिए. तो ये जो संघर्ष मेरा जो चलता है ना, इसका जो मैंने पथ पकड़ रखा है, ये पथ सही है कि मेरे को एक ही रास्ते को खोजते हुए चलना है, या रास्ते जो मैं मतलब कभी कभार जरूरत के आने पर मैं जब रास्ते थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ या सेकंड रास्ते को खोलने की कोशिश करता हूँ? नहीं, मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कट्टा साहब कि आप गिव अप कर दो. जब तक नहीं, आप give up एक्शन नहीं ले करता सकते मैं. हैं. देखो हाँ. ये आपकी कंडीशन अलग है, आपके पास ऑप्शन है. हम्म आप हम्म अपने आप को हरामखोर मत बनाओ कि बस सर ने बोल दिया सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दूंगा. नहीं, जब तक आप रास्ते खोज सकते हो, एक्शन कर सकते हो. मैं आपके बिजनेस का ही कल सवेरे मेरे को एक जिम में बंदा मिला, वो बोला रवि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम ये, मेरा मार्केट था सारा यूएई, मेरे पास हम्म अरबों के ऑर्डर पड़े हैं जो मेरे को शिप करने हैं. मैं 2-5% पे काम करता हूँ. जो एक कंटेनर का फ्रेट $400 था, आज वो $7,500 हो गया. $400 का फ्रेट आज बिल्कुल सही कहा. $7,500 हो गया. अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और वो बड़ा खुश. मैंने सरेंडर कर दिया. जब चीज़ें ठीक होंगी मैं भेज दूंगा. मैंने कस्टमर को बोल दिया मैं घाटे में व्यापार नहीं करूँगा. और वो बहुत पावरफुल फैमिली है वहाँ की, और वहाँ से मेरे पे बहुत प्रेशर डाल रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता तो नहीं कर सकता. अब ये कंडीशन उसके कंडीशन में नहीं. आपके कर्म आपके हाथ में हैं, आप चीज़ें बदल सकते हो, आप चीज़ें कर सकते हो, उसमें सरेंडर नहीं करना. नहीं करना, वही मैं पूछ रहा था. जब तक 3 चीज़ें आप उनको बदल सकते हो, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस, आप कर सकते हो. माल नहीं बिक रहा, माल नहीं बिक रहा, माल नहीं बिक रहा, ये सोल्यूशन नहीं है. ये रोते रहेंगे लोग, ये दुनिया रोती रहती है. दुनिया रोती. आप एफर्ट कितने डाल रहे हो, आप कर्म कैसे कर रहे हो. आपका शेयर 0.00001% है मार्केट का, और आप बोल रहे हो माल नहीं बिक रहा. बाकी सारे लोग कैसे बेच रहे हैं? आपने भैया, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. हमारे व्यापार में एक कहावत चलती है, जवाहरात में स्पेशली ज्वेलरी बिजनेस में, रोए रोजगार बढ़े. मैं 2020 से ग्रेटिट्यूड क्लब से जुड़ा हुआ हूँ. उस दिन से आज तक कभी भी मैंने संडे को, जिस दिन ऑफिस बंद होते हैं ना, उस दिन भी ये नहीं कहा लोगों को कि काम नहीं है. मैं कह रहा हूँ यार मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है, संडे को भी काम है. सच्ची बात मतलब है ना ये. 2020 से मैं ये सबको एग्जांपल दे रहा हूँ. हमारे जवाहरात में जो कहावत है, मैंने उसको कभी भी प्रूव नहीं होने दिया कि रोए रोजगार बढ़े. मैं हर बार ये कहता हूँ, रवि भैया से मिलने के बाद मैंने हर बार यही बात बोली है कि भाई काम की कोई कमी नहीं, करने वाला होना चाहिए. मैंने कहा बहुत काम है हमारे पास. तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अबंडेंस में जीते हम. अबंडेंस में खूब पैसा है दुनिया में, खूब पैसा है. हाँ, और उसमें से बहुत सारा हमारे पास भी आएगा. आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. चलिए, ग्रेट ग्रेट. एनीवन एल्स, एनीथिंग कुछ शेयर करना है? हाउ वाज द सेशन? रवि भैया, कुछ अच्छे रवि शब्द भैया, मेरे लिख को एक देना. चीज शेयर करनी है, बतानी है. हाँ, हुकुम. कि जैसे कट्टा जी बोल रहे हैं कि माल नहीं बिक रहा है, ये नहीं हो रहा. अगर हम शिद्दत से करते हैं कि हो रहा है, एफर्मेशन जो करते हैं, एफर्मेट जो करते हैं, वही लाइफ में आता है. तो इसलिए लेट गो करके चीजों को एफर्मेट प्रॉपरली करेंगे तो कोई चीज नेगेटिव होगी ही नहीं है. व्हाट आई थिंक, अकॉर्डिंग टू रोंडा बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू डिवाइन पावर. सही बात है, जो सोच लिया वही होएगा. साई जी प्रणाम.
नहीं ताई जी, मैं तो अबंडेंस वाली बात करता हूँ। आप तो मेरे को अच्छी तरह जान रहे हैं, मैं अबंडेंस वाली बात करता हूँ ताई जी। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ कि नहीं है। ग्रेट नहीं ग्रेट नहीं, ग्रेट बोले ग्रेट माल गाइस। नहीं बिक रहा, भैया बोल रहे हैं ना, वो नहीं रहा, सब होता है, सब होएगा। बस पॉजिटिव रखो सोच को। पॉजिटिव है। तो नथिंग आज इज की जो भी एक लर्निंग है, प्लीज 3 चीजें जो भी लर्न करी हैं वो ग्रुप पे डाल देना, दूसरे लोगों को थोड़ा सा, एक्सेप्टेंस मेन। Yes, yes. दूसरे लोगों को थोड़ा सा अपने को वापस जगाना है। अच्छी अटेंडेंस थी आज, लेट्स होप मोर पीपल कम इन द नेक्स्ट सेशन। रवि एंड भैया प्लीज, हैप्पीनेस ड्राइव कर लो, एक बहुत दिन हो गए। अरे चाहिए आपने मिस कर दिया, हम पिछले हफ्ते महीने करके आए एक। ओ नो। मैं लेट पहुंचा था। पिछले मैं भी पहुंचा था, रवि भैया लेट लेट पहुंचा था, आप लोग निकल गए थे। नेक्स्ट इट नेक्स्ट वाज डन लॉट है। ऑफ फन, इट वाज लॉट ऑफ फन। एक्चुअली मे बी आउट ऑफ टाउन, ट्रेवल बहुत चल रहा है, तो वेडिंग्स का सीजन है तो। जीवन में आनंद चल रहा है, ट्रैवल नहीं, आनंद चल रहा बिल्कुल, अभी लहरों को देख रही थी, आप Right. लहरों पे तैरा रहे थे, मैं लहरों को देख रही थी वहां पे है। बाहर बीच पे, गोवा में। चलिए ग्रेट। सो गाइस प्लीज ग्रुप पे जरूर लिखना, दूसरे हम लोग अगर कुछ सीख रहे हैं तो शेयर करना आई हमारा थैंक यू। धर्म है। Yeah, हमारा yeah, yeah. धर्म है कि हम लोग शेयर करें, और कुछ अच्छी बातें सबको, हमारी जो परिवार छोटा सा बना है उनको सिखाएं, आगे बढ़ाएं, भैया so that they सेशन are also कब शुरू motivated. कर रहे हो? हाँ, नेक्स्ट सेशन New कब शुरू session. कर रहे Yes, हो? भैया. We यार are ये waiting for new क्वेश्चन, session. ये इस बार मैंने पूरी की पूरी कमान अंकित को दे दी, जब तू बोलेगा तब मैं कर लूंगा। तो ये सारे सवाल अगर आज आप अंकित को सब प्राइवेट मैसेज करोगे ना, तो वो मजा आएगा मेरे को, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा बैकवर्ड हूँ, मैंने अंकित Yes. को बोला तू ही करेगा अब आगे। चलिए ग्रेट, थैंक यू Great. सो मच, इट्स ऑलवेज Thank you. ऑलवेज लवली टू Thank you, कैच अप thank विद you, ऑल ऑफ thank यू। you, भैया. थैंक एंड यू। प्लीज इसको भैया। इम्प्लीमेंट Thank you. कर लेना, Thank you, थोड़े से thank you. इमोशनली Thank, इंटेलिजेंट Thank बन you, जाना। sir. थैंक यू Yes, thank you. भैया. Thank Yes, you. भैया. so much, Thank Priya. you. Thank लव you. यू New ऑल। Thank session, you. भैया. Thank you. Love Thank you you. all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank भैया. you. थैंक यू, बाय बाय। Thank you. Thank Bye-bye. you. Bye bye. Thank you. Happy Thank mornings all. you. No music. Thank you so much। Thank you. Start making moves with चालू Hosting कर दे Sing म्यूजिक। for just $5.99 Yes. fees a month. जाते जाते ग्रेटिट्यूड ही करके जाते। धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए, धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए, धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है, धन्यवाद मेरे रिश्तों मुझे प्रेम का एहसास कराने के लिए, धन्यवाद अवसरों मेरे दरवाजे पर आने के लिए, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद मेरे संघर्ष। धन्यवाद हमारे जीवन इस अनमोल उपहार के लिए, हर नई सुबह के लिए और हर सांस में छुपे चमत्कारों के लिए, धन्यवाद मेरे श्वास जो हर पल मुझे संभालती है, धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत मेरा साथ निभाता है, धन्यवाद मेरे मन जो अब शांत होना सीख रहा है, धन्यवाद मेरे विचार जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं, धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए, धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए, भैया महेश। धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। Yeah, please share this shot. धन्यवाद मेरे रिश्तों मेरे परिवार के निस्वार्थ प्यार के लिए, मेरे दोस्तों की मुस्कान के लिए, उनके साथ बिताए हर अनमोल पल के लिए, धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे समझा, मुझे थामा और बिना कहे मेरे साथ खड़े रहे, धन्यवाद अवसरों जो मेरे दरवाजे पर आते रहते हैं, धन्यवाद सीखों
दिन मुझे और बेहतर बनाती है। धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए, मेरी हर इच्छा को सही समय पर पूरा करने के लिए। धन्यवाद मेरे संघर्ष मुझे मजबूत बनाने के लिए। क्या सुना? धन्यवाद मेरे संघर्ष मुझे और मजबूत बनाने के लिए। बनाने के लिए। धन्यवाद मेरी गलतियां मुझे सिखाने के लिए। धन्यवाद हर अनुभव जो मुझे और समझदार बना गया। धन्यवाद ईश्वर जो हर कदम पर मेरा हाथ थामे रखते हैं। धन्यवाद उस अदृश्य शक्ति को जो भीतर से मुझे मार्ग दिखाती है। धन्यवाद मैं स्वयं क्योंकि मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं कृतज्ञता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद अपार धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ उस शांति के लिए जो धीरे से मेरे अंदर उतरती है। मैं कृतज्ञ हूँ उस सुकून के लिए जो मुझे हर दिन संभालता है। धन्यवाद उन सपनों का जिन्हें पूरा करने की प्रेरणा मुझे मिलती रहती है। धन्यवाद उस साहस का जो मुझे हर चुनौती में आगे बढ़ाता है। धन्यवाद प्रकृति तेरी हरियाली, तेरी हवा, तेरी खुशबू जो मेरे मन को ताजा कर देती है। धन्यवाद उन अनदेखे आशीर्वादों का जो बिना बताए मेरी जिंदगी में आते रहते हैं। धन्यवाद मेरे दिल जो प्रेम महसूस करता है, जो पिघलता है, जो रोज नया बनता है। धन्यवाद मेरी आत्मा। आप लोग ही लकी लोग हो जिनको ये गाना सुनने को मिला इतना अच्छा ना। Yes. Yes. भैया शेयर करना। Beautiful song. भैया बहुत वेरी बहुत पावरफुल beautiful। सॉन्ग भैया और शेयर करना ये Share हाँ, करो। बिल्कुल था पूरा। बहुत ही इतना बढ़िया। पीसफुल फील हो रहा है कैसे ना, लगेंगे? बहुत बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू नहीं, भैया। कर रहा मैं। I'll do that. I'll do that. I'll do that. ये अलग थैंक ही यू। एनर्जी मिल रही है शेयर भैया, कीजिएगा। Thank you very एक्चुअली much. बहुत अच्छा कर लग रहा रहा हूँ। है। थैंक यू थैंक यू शेयरिंग विद जब थैंक यू गाना सो सुन लो तो मच। प्यार दीजिएगा, दुआएं Yeah, दीजिएगा, yeah. ठीक है? यस 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 डेफिनेटली। यस भैया। बहुत सारी लव यू भैया। ब्लेसिंग्स भेजिएगा। Yeah. Thank you, यस Ravi ji. चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, you. थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। लव यू ऑल। लव यू ऑल। थैंक यू बाय भैया, you all. थैंक यू Bye-bye. सो मच। बाय Bye. बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। Bye, 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 bye.